Okay. So, ma'am, before starting the interview, I'd like to introduce myself. I'm Ria Dubey, and currently I'm Hmm. pursuing my MBA from ITM College. And for the next Hmm. 15 days, sorry, 15 days, we are almost over our internship. So, we are Hmm. associated with Durai Foundation currently. And I'm Well, under the project. I'm I'm just a minute, Yes, ma'am. ma'am. When you have a completed recorded, na, please send me that record. Sure, That video, sure, please ma'am. send me. We'll Okay. send you. Okay. Okay, okay, Mm-hmm. ma'am. Okay, ma'am. Mm. So I'll send you the recording, and ma'am, we are under the project called Trans Achievers. So our goal Mm. is to like interview transgenders and spread awareness amongst people by like asking some questions and breaking some taboos. So that's about Mm-hmm. myself, ma'am. Now Nikita will introduce herself. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I'm Nikita. Currently, I'm pursuing my PGDM from ITM Navi Mumbai College. We are Mm-hmm. associated with Durai Foundation, and we are interviewing Mm. 15 different transgender people for the social Mm-hmm. awareness and the social cause. So we are extremely Mm-hmm. grateful that you took out time and you are ready to give interview. We are very Mm-hmm. eager to take the interview. Thank you. Welcome. Okay, ma'am. So should we begin the interview now? Mm-hmm. Okay, ma'am. So, ma'am, can you please introduce yourself? Like, tell us a little bit about yourself and your journey till now. Okay. My name is Kajal Mangalmukhi. I'm from Chandigarh. I'm a transgender welfare board member from Chandigarh. First the transgender from Bharat. I'm one kind of journalist. I'm Okay, owner of the Mangalmukhi channel INC Media, and I'm Mangalmukhi Mandal president and Mangalmukhi.com. I have a website. I'm great. doing work for transgenders, and transgenders can everyone is the equal, but Yes, ma'am. because we have some problems faced now, but some rights are act. Why not implement it? That Yes, is the ma'am. one big question of standing in my mind. Really, I'm very, very insecure from our community. Our community, some people, I mean, Kinner community people, some people give me some abuse me and force me and sometimes giving very bad use words for me. Why do that type kind of work you? Why do rights for transgenders? You don't do that. Now, but sometimes I'm taking my problems. I'm go to any systems, yeah, police station, yeah, any uh, court, yeah, any other advocate. Na, then they are not listing our problems. What problems? They have ignored us. Why? That is the one Yes, ma'am. question, my one question. And after we can do everything. We can Yes, do ma'am. Yes, everything. ma'am. We have a biological, we are transgender, but our psychological is not transgender. That is the Yes, ma'am. one truth, 100% truth. We can do everything. Yes, The, ma'am. why not bringing immediately? Why not doing about the transgender rights? Transgender rights for work. Why not doing fast? Why late? That is another one question. My mind. Yes, ma'am. Mm-hmm. I'm getting your point, And ma'am. So, ma'am, yes, uh, ma'am. Please speak. after we want to bringing in changes. How kind Exactly. of changes? How kind of changes? One transgender and kinner between divided the two part of the community. Transgender is a new generation. New generation. They living with their parents. Yes, They ma'am. living with their parents, but our community in kinner community and some elders and some hangers and some people is that there are no kinners and no any
Hijras. Yes, They ma'am. are only money. They want the Exactly. money. They want connected money, or they have a beneficial money only, attract only money. And there are some people coming in our community. But why not interest? Yeah, why not take any एक्ट या मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करना चाहती हूँ, तो क्यों बिल्कुल नहीं? मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है, जी, प्लीज हिंदी में हाँ बात जी, हाँ करिए। जी। मैंने चाह रही हूँ कि अगर हमारी कम्युनिटी को लेके अगर देखा गया तो एक तो ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी है, और एक जी जो है हमारे किन्नरों को लेके है। किन्नर कम्युनिटी जो है वो सिर्फ परंपरा को दर्शाता है। जी तो इस परंपरा को कुछ लोगों ने हमारे इसमें बिजनेस बना लिए। जी अगर जी जी इसको लेके, अगर इस इश्यू को लेके अगर हम थाने कचहरी कहीं भी जाए तो कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं कार्रवाई करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो मैं इसी को ही मुख्य धारा में रखते हुए, नजरिया रखते हुए मैंने पिटीशन फाइल की थी। अभी वो पिटीशन अभी एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जी कल ही मुझे उसका ऑर्डर आ गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो उसके साथ ओके साथ मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हमारे भारत अगर एक कंधे पे कंधे मिला के चलना है तो सब कोई अपनी लिंग या भेद ये सब छोड़ के सिर्फ सोच और विचार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इंसान जी की सोच और विचार कैसी हैं वो देखना बिल्कुल चाहिए। सही। तो मेरा जो मुख्य धारा है, ताली बजाना नहीं ताली बजवाना जी जी, है ना? क्या क्या बात हाँ कही आपने। ताली बजाना बहुत नहीं ताली बहुत गजब। बजवाना है। अगर हम बधाई लेते हैं, बधाई लेते हैं, तो किसी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब शादी होता है, वहाँ बच्चे की बधाई लेते हैं तो वो हमारा परंपरा है, वो हमारा संस्कृति है। आज भी हमारे समुदाय के, हमारे किन्नर समुदाय के कुछ माइयाँ हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, ये सब आजकल की जो ऐसे घुसे जा रहे हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, ऐसे लोगों ने आजकल हमारी कम्युनिटी को बदनामगी की ओर ले जाने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टम ध्यान देना चाहिए इसके लिए। और बिल्कुल सही इसके बात है। साथ साथ जो हमारे डेरा संस्कृति है, जो 100 साल से, 50 सालों से जो डेरा है, हमारा दाद गुरुआ है, हमारे गुरुआ हैं, जो वो सब जी देखिए, अब वो सब वही जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके आते हैं, जो सोसाइटी के आम जनरल को जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो जी प्रिंसिपल है, जो समाज के, वही प्रिंसिपल आज भी हमारे डेरे की संस्कृति फॉलो करके आते हैं। मगर कुछ जी लोग मैम। हमारे डेरे की संस्कृति को बदनामी करने के लिए तुले हुए हैं। और मैं इसी के लिए चाहती हूँ कि अगर हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स को लेके, एक्ट को लेके अगर पार्लियामेंट में पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, तो उस एक्ट को, उस राइट्स को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। ये जी मैम। खाली एक स्टेट के लिए लिमिट नहीं होना चाहिए, पूरा स्टेट के लिए होना चाहिए। भारत में कितनी स्टेट है, सब स्टेटों में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। और बनना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए, हाँ जी, ट्रांसजेंडर्स के लिए खाली गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो बस नसीब ही रह गया हमारे लिए, है ना? गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ नसीब बिल्कुल ही सही रह गया, बात है। सिर्फ वो बिल्कुल सही मेल बात और है। मेल और फीमेल ने उसका फायदा उठाए, बेनिफिट उठाए। मगर किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए कहाँ है गवर्नमेंट जॉब, बताइए, है ना? अगर बिल्कुल सही बात 2% है। किन्नर है हमारे भारत में, 2% है तो कम से कम 2% तो हमें भी मिलना चाहिए। हाँ, कोटा में कहाँ है? तो मैंने कहीं 2007 नहीं में है। मैंने रिजर्वेशन के लिए मैंने यहाँ पिटिशन मैंने अप्लाई की थी, यहाँ से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से 2007 में, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब्स फॉर अदर्स। तो उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस तो आया हुआ है, मैं मानती हूँ, मैं एग्री हूँ, मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। आज भी इंसान को बस इसी की नजरिया से देखा जाता है सिस्टम। तो ये किन्नर बोल के अपना इग्नोर ना किया जाए ट्रांसजेंडर समझ के। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी से, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज से, बहुत सारे ऐसे जो अपना जो बड़े बड़े कंपनीज में ट्रांसजेंडर्स को जॉब देना चाहिए।
और इनवाइट करना चाहिए, तो ताकि उसको एक इनकम सोर्स की जरिया बन जाए, सही बात है। अगर है ना? आपको तो आज के तारीख में अगर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हाँ जो जी, हाँ पैसे जी, मांगने के लिए और जो यूजुअली जो हम देखते हैं कि किन्नर कैसे लोग उनसे सोचते हैं कि इनका बस एक ही काम है पैसे मांगना। अगर आप लोगों को इक्वल जॉब मिलेंगी तो क्यों ऐसी चीज की फिर गुंजाइश होगी? अगर सही जॉब के लिए बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऐसी की फिर तो तुक नहीं बनता है कि फिर पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता अगर आपके लिए इक्वल सही राइट्स बात होंगे। है। वही तो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज भी हमारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, कोई एमए, एमकॉम, बीए, बीकॉम, जी, बीटेक करके भी वो ताली बजाने के लिए मजबूर है। क्यों ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, गवर्नमेंट के साइड से कोई रूल नहीं है, जॉब के लिए कोई कोटा रूल नहीं नहीं। है। अगर हमारे लिए जब 2014 में अदर कैटेगरी दे दिया गया है, तो अदर कैटेगरी के लिए जितने जो मेल और फीमेल के लिए जो इक्वल राइट्स है, वही इक्वल राइट्स भी हर इसमें होना चाहिए। और हर फॉर्म जो होता है, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट से लेके, चाहे वो टूरिस्ट डिपार्टमेंट से लेके, हेल्थ डिपार्टमेंट से, या उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेके, हर डिपार्टमेंट में, हर फॉर्म में अदर कैटेगरी भी तो होना चाहिए। अदर कैटेगरी भी होने के साथ साथ उसके हर राइट्स मिलना चाहिए, और सब कुछ मिलना बिल्कुल चाहिए, सही जब भी बोला। हम ये सब रोक सकते हैं। एक ट्रांसजेंडर्स को मजबूर होके या भीख मांगना पड़े, या मजबूर होके उसको अपनी शरीर बेचना पड़े, प्रोस्टिट्यूशन करना पड़े, या मजबूर होके वो ताली बजाना पड़े जहाँ ना बच्चा पैदा होता है, जहाँ शादी होता है। ये तो हमारा अपना हक है, ये ताकि हमारा परंपरा है। परंपरा चलाने के लिए एक बंदे बस से बहुत कुछ है, एक शहर के लिए कोई 100 बंदे की लोड़ नहीं है, 1000 बंदों की लोड़ नहीं है ना? जब सब कुछ आज से बिल्कुल सब सही कुछ बात है। अच्छा है, तो वो तो जॉब करके अपना कमाने लगता है। जब तुमने पहले, हमारे सोसाइटी में हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल सही। एक्सेप्टेंस नहीं है, सोसाइटी के दबाव में आके माँ बाप नजरें चुरा लेते, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते एक ट्रांसजेंडर बच्चे को। तब क्या करता है वो ट्रांसजेंडर बच्चा? फिर बाद में बड़ी मुसीबत से फिर बाहर निकलता है, टीनेज एज में निकल के फिर मजबूर होके एक डिस्पोरिया के शिकार होता है। डिस्पोरिया के शिकार होके फिर वो नशे की लत लग जाती है उसे। फिर बाद में बिल्कुल, उसके नशे की लत लग जाती, तो अगर नशा छुड़ाने के लिए कहीं रिहैबिलिटेशन में भी ले जाओ, वहां भी ये कहते हैं कि यहाँ तो मेल और फीमेल के लिए, किन्नरों के जी। लिए नहीं है कहते। अरे ये कितनी शर्म की बात है ना? और उसके बाद कहीं अस्पताल में भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा तो थोड़ा हमारे लिए इग्नोरेंस रहता ही रहता है। ऐसे क्यों? बिल्कुल सही बात है मैम। और उसके साथ साथ मैडम, मैंने ये कहना चाहती हूँ, अरे अगर यूनाइटेड किंगडम हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, अगर अरब अमीरातीज में हो, वहां भी तो तीसरी जेंडर होंगे। वहां भी होंगे, मेल क्यों और नहीं फीमेल होंगे? के साथ वहां भी मेल और फीमेल के साथ तीसरी जेंडर तो होंगे। तो वहां कैसे फिर इक्वल है? तो हमारे सही देश बात है। में वहाँ पे ऐसी हाँ, अगर जन्म मरण जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, बचपना जवानी बुढ़ापा सबके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो हमारे भारत में भी तो इंसान ही रहते हैं, कोई और कोई एलियन तो नहीं रहते हम तो यहाँ सही बात है। भेदभाव क्यों है? यहाँ ऐसे क्यों है? जल्दी से यहाँ इनको ये गंदी राजनीति करने से फुर्सत क्यों नहीं मिलते इन पॉलिटिशियंस को? हाँ, हम तो शरीर से किन्नर है, तो यहाँ की कुछ राजनीतिक बंदे जो है, कुछ लोगों को कह रही हूँ, वो दिल और दिमाग से वो किन्नर है, जो ताकि हमारे लिए कोई सोचते नहीं है, कोई कानून नहीं बनाते, कोई कुछ नहीं बनाते। अरे भाई, झूठ नहीं बोलती, हमें मौका दिया जाए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी, अगर बिना इलेक्शन के अगर एक मौका दिया जाए मुझे पार्लियामेंट में बैठने के लिए, तो ये सब जो कुरीतियां हैं, ये सब जो बुराइयां हैं, जो एलजीबीटी को लेके या किन्नर कम्युनिटी को लेके या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके, वो सब मैंने अपना दो के रख दूंगी। झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल ताकि सही मौका बात है। देना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं देना इलेक्शन, चाहिए? वही तो, इलेक्शन में खड़े होने नहीं देंगे, और इसके साथ साथ हमें जीतने तो नहीं देने देंगे, क्योंकि या तो बहुत सारे पावर जो है वो फॉर्मेलिटीज है, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो वहां तक पार्लियामेंट तक तो हमें पहुंचने नहीं देंगे, है जी, ना? जी मैम, अगर बिल्कुल। मैं चैलेंज करती हूँ, बिना इलेक्शन के मुझे पार्लियामेंट में एक सीट दिया जाए। मैम, मैंने मैं आपके ये वीडियोस देखे हैं जिनकी लिंक आपने मुझे यूट्यूब में देखी थी, और मैंने देखा कि आप किस पावर से बोलती हैं हाँ, जब आप बोलती हैं तो।
तो जो हाँ आप कह सही रहे हैं बात, बात, अगर वो सच हो गई तो वाकई में बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा इंडिया को। सही बात। अगर मैंने अभी एक बात कह रही हूँ, 30-35 साल पहले की बात है, जब हमारा जो चाइल्डहुड था उस टाइम पे हमें पढ़ने नहीं दिया। चलो उस टाइम पे तो लोगों का सोच भी ऐसा था। अगर कंपेयर करें तो अब तो बहुत कुछ चेंजेस आया हुआ है, मगर इतने भी चेंजेस क्या है, रुपयों में बस खाली 75% चेंजेस आया हो, तो 25% फिर भी अधूरे हैं। हाँ, सही कोई बात है। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो हम अपने आप को, हमारे भारत में कुछ लोगों की जो नजरिया है, सोच है, वो उसको बदलना जरूरी है हम लोगों को। सही कह रहे ना? यस मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। हाँ आपके हाँ। आपके वर्ड्स में इतना वो है, अग्रेशन है और इतना मतलब पावर है ना कि जब आप बात करते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि अगर मौका मिले तो क्यों नहीं ये सारी चीजें पॉसिबल है। बस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की देर है, नहीं तो काबिलियत तो हम सब हम्म। में बिल्कुल सेम है, बल्कि आप में मुझे काफी ज्यादा लग रही है। बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा हाँ लग जी, रहा हाँ है सुन जी। के। इसी के साथ साथ मैंने मैम यही आपकी आवाज डिमांड थोड़ी सी है, कट रही है। इससे पहले जिस जगह पे थी वहां पे आपकी आवाज और सही आ रही इसके थी, अभी थोड़ी साथ कट साथ रही जो है आवाज। बच्चे, हेलो। जी मैम। हेलो। यस मैम, अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो। 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 यस मैम, हेलो मैम। आपकी आवाज आ रही है। हेलो। आई थिंक निकिता कुछ ईयरफोन गड़बड़ हो गया है उनका, दैट्स व्हाई शी इज नॉट एबल टू हियर अस। हाँ जी, आप ठीक है, आप ठीक है ओके, मैम? आ रही है। यस मैम, यस नाउ इट्स कमिंग। एक्चुअली ना चार्जिंग नहीं है इसमें, इसके लिए मैं कह रही थी क्या अच्छा करूँ, ये अच्छा। आईफोन है ना। हाँ हाँ। यस मैम, आईफोन के साथ तो बड़ी तो दिक्कत रहती है, बड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो इसके साथ साथ मैं यही कह रही मैम, तो इतना सारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, जो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? हाँ, तो अभी भी बहुत मजबूर है ऐसे बच्चे जो भीख मांगने के लिए और शरीर बेचने के लिए क्यों मजबूर है। मैं मानती बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन से, ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे बहुत कुछ है, वो बस सिर्फ एलजीबीटी के लिए जुड़े हैं। एलजीबी क्या है? एलजीबी क्या है बताइए? मगर रह गए तो सिर्फ ट्रांसजेंडर ही अपना बहुत फेस कर रहा है जो बात है। सही बात है। हाँ, एक्सेप्टेंस बहुत एलजीबी कम तो है मैम अपने माँ बाप की ट्रांसजेंडर्स के लिए। वही तो ये क्या, ये दुर्दयी कब तक चलेगा? ये कब तक ये फेस करते रहेंगे? हाँ, एक सही इंसानियत बात है। के नाते, ह्यूमन बीइंग के नाते किसी के अंदर दिल है नहीं है। हाँ, और ये तो हमारी है जो मैम। यहाँ सब घुसी जा रहे हैं, यहाँ सब घुसी जा रहे हैं, बस किन्नर मतलब कोई भी, अगर कोई पुरुष भी 2 बच्चे का बाप है, 3 बच्चे के बाप है ना, 3 बच्चा पैदा करके क्या करता है, तो वो भी अपना लिंग परिवर्तन करके साड़ी पहन के ताली बजा लेता है यहाँ के, तो वो क्या किन्नर बन गया वो? ये तो है मैम। यही हाल हो रहा है हमारा कम्युनिटी के अंदर। तो मैम आखिर मतलब क्यों आप ये ऐसा? कहना चाह मैम आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में गलत तरीके से लोग प्रवेश कर रहे हैं, लाइक जो इस कम्युनिटी के लोग हैं भी नहीं वो भी आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो भी आ रहे हैं, जिस ओके। कम्युनिटी के है नहीं है वो भी आ रहे हैं जबरदस्ती के। देखिए, अगर उनका बैकग्राउंड देखा गया तो उनके पीछे बहुत सारे फैमिली भी है। फैमिली मतलब जैसे उनके वाइफ भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, मगर ये किन्नर को कैसे बच्चा पैदा हो सकता है बताइए? अगर किन्नर को अगर बिल्कुल। बच्चा पैदा होता तो वो मामूल अपने माँ बाप के पास ही होता, और दूसरा अपनी सही बात है। कम्युनिटी में आने की कोई लोड ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोड ही नहीं था मैम ये ये करने कैसे? का रीजन क्या रहता है लोगों के मन में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वो केपेबल हैं अपनी फैमिली शुरू करने के सब कुछ, तो उसके बाद लिंग परिवर्तन करने का क्या कारण रहता है? ऐसा मतलब क्यों तो हो रहा है फिर? कारण ये रहता है, उनकी मंद बुद्धि है, उनकी मंद जी बुद्धि है। जब भी बोलते ना, तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए कोई भी कदम आगे रखने से पहले। जी जी जी। अगर हमने यहाँ तक हमने आए हुए हैं, अगर हमने मैं भी ये कहती हूँ, मैंने भी अपना बायोलॉजिकल में पुरुष थी, बायोलॉजिकल जी आई एम अ पुरुष, आई एम मेल, बट माय साइकोलॉजिकल हम अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, मैं एक लड़की हूँ, मेरा आत्मा लड़की का था। ओके। कहता ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि इंसान जो भी होता है, जो वो ऑर्गन कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
उसका सोच है, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ, जो वो अपने आप को क्या पहचानता है अपने आप को, वो जी, जी, जी। इम्पोर्टेंट है। अगर कोई गलती से कोई तुम जाने अनजाने तुम्हारे से दो बच्चा पैदा होने के बाद तुम आने आके तुम हमारी सोसाइटी में मैं भी एक किन्नर हूँ बोल के तुम बताते हो, तो फिर वो पीछे जो तुम छोड़ के आए हैं, तो उस बच्चे का क्या है बताइए, वो कौन है? जी, जी, जी। फिर तो हमारी कम्युनिटी के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। सब बिल्कुल, किन्नर ऐसे ही होंगे, ये नहीं समझेंगे। तो इसी के लिए बिल्कुल तो सही बात है मैम। समझना चाहिए कि मैं तो मांग रखती हूँ कि नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट सब हमारी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए हमारा सोसाइटी के जी। अंदर। ये सब मैम कौन मैं आपसे आइडेंटिटी प्रूफ। क्वेश्चन जान पूछना चाहूंगी मैम। जैसे कि आपने कहा हम्म कि आप शुरुआत में एक मेल थी और फिर आपकी मानसिकता और आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चलती है उससे आपने फिगर आउट किया कि आप एक लड़की के जैसा सोचती हैं। तो मैम किस उम्र हाँ, से एक इंसान जान जाता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे साइन है, ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे वो ये समझ जाता है कि वो किसी और जेंडर को बिलोंग करता है, यानी वो कौन सी उम्र होती है जिससे ये पता चलता है आपको? किसी का कितनी उम्र में होता है, कितनी ये होता है, वो मुझे नहीं पता। कोई कोई अपना देखो, किसी को देखे वो खरबूजे को देखे खरबूजे रंग बदलता है बोल के, है ना? जी, तो ये भी हो जी, सकता है, जी, जी, मगर हमारी लाइफ में जो है, हमने 6 साल के 7 साल के बच्चे थे, तभी से जी। मुझे पहचान हो गया था कि मैंने दूसरी जेंडर में मैं पैदा हुई हूँ। मेरे शरीर ही और ही ओके, कुछ है और मैं ही और ही कुछ हूँ। और उसके ओके, ओके। बाद मेरे को जब मेरा बचपना जो चाइल्डहुड जो है, बस अपना मैं अपनी लड़कियों के साथ ही खेलना मुझे अच्छा लगता था, मुझे बर्तन धोना अच्छा लगता था मुझे। हेलो निकिता, स्टॉप कर दो रिया, रिकॉर्डिंग। हाँ ओके। कब ये अगर कोई भी, हेलो, जी मैम, मैं सुन रही हूँ। अगर कोई भी आदमी आएगा अपना जी, दो मर्डर करके आ जाएगा, अगर कोई ऐसी जी, आतंकवादी भी आ जाएगा, आके अपने लिंग परिवर्तन करके अपने साड़ी पहन के हमारे कम्युनिटी में आ जाएगा, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारा सरकार, एक किन्नर है बोल के बहुत कुछ भी कर सकता है। ये कब जागेगा ये सरकार, जी। कोई भी हो। ये कोई कहते हैं ना, तो गुड गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑनेस्टी, है। मैम ईमान आपकी तो हर आवाज नहीं आ रही इंसान है। के अंदर निकिता, होना आर यू एबल चाहिए। टू हियर? हाँ, ठीक है, सुन रहे हो? हेलो, यस मैम, मैम आ रही है आपकी आवाज। हेलो हाँ बोलिए। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है अब आ रिया, रही आ है? रही। यस मैम। अब आ रही ना? यस मैम, निकिता, रिया, I guess there is something from your end because she is मैंने ना audible. ये निकाल दी मैंने। यस मैम, मैम आपकी आवाज आ रही है एक्चुअली, उसके उधर। मैं सुमित्रा मैम को भी अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ जी मैम। यस मैम, हेलो, यस मैम, आप बोल रहे हैं सुमित्रा मैम को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने सब कुछ चेक कर रही हूँ, मगर देखिए मेरे को ये ट्रांसजेंडर्स को राइट्स के लिए भी काम करना है, और उसके साथ साथ मेरा अपना जो किन्नर कम्युनिटी जो आज से नहीं, जो सदियों सदियों से जो हमारा परंपरा है, उसको भी बचाना है, सेव करना है, मेरे को प्रमोट करना है, लोगों के सामने रखना है। यस हाँ मैम। जी। और मगर जैसी जबरदस्ती का कोई आके साड़ी पहन के हमारी कम्युनिटी में आके ताली बजाने से कोई बंदा भी, कोई ताली बजाने से, साड़ी पहन के ताली बजाने से कोई किन्नर नहीं बन सकता। बिल्कुल। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी वो वाला। जी हाँ, मैम। ताकि ये मेरा अपना परंपरा है, ये मेरा अपना कम्युनिटी के ऊपर अगर कोई भी ब्लेम आ जाएगा तो मैं कैसा उसको बर्दाश्त कर सकती हूँ, सही है ना? बात है मैम। बिल्कुल। हाँ, इसके इसके साथ साथ मैम और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, सवाल आपका सवाल, जी, मैं खाली जी, जवाब ही जी। दे जा रही नहीं हूँ। मैम, मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी के बीच में क्या मिसकंसेप्शंस हैं ट्रांसजेंडर मेन और ट्रांसजेंडर वुमेन को लेकर। हाँ हाँ, तो क्या मतलब लोगों के दिमाग में कुछ मतलब डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है? क्या आप इस पे कुछ अपनी राय देना चाहेंगी? तो मैं यही बताई, पहले भी यही बताई, देखिए अगर ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन अगर ये इंग्लिश में दिया गया है, पहले तो किन्नर हिजड़ा कहा जाता था। जी, अभी ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन दिया गया है, तो ट्रांस मैन की जो बात है वो तो कभी सामने आएगी नहीं वो,
ट्रांसमेन ने तो कभी सामने आएंगे नहीं। अगर कोई आ रहे तो एक दो जन आ रहे तो वेलकम है। अगर जो भी जी कुछ जो संघर्ष कर रहा है वो ट्रांस वुमेन ही कर रहे, मतलब एक किन्नर ही कर रही है और सदियों सदियों से कर रही है। जी मैम। सदियों सदियों से ट्रांस वुमेन जो हैगी कर रही है, वो तो करते रहेगी। मगर ट्रांस वुमेन जो वही है जो बचपन में, जो ट्रांस वुमेन वही है जो बचपन में अपने आप को एक स्त्री समझती है, अपनी वुमेन समझती है, अपने आप को, उसका चॉइस भी एक वुमेन है, अपनी सब कुछ जो एक गर्ल जैसी अपने आप को पहचान आइडेंटिफाई करती है, तो वो ट्रांस वुमेन होती हैं। और अपने आप को एक पहचान जो दिलाती है वो जब भी वो किन्नर कम्युनिटी में आती हैं। वो किन्नर जी मैम। कम्युनिटी में आने के बाद में वो सिर्फ एक ही रूप में, एक ही वेशभूष में रहती है। वो नहीं कि जी रात को एक वेशभूष होता है, दिन में एक वेशभूष होता है ना। अब जी 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 देखिए इसी कम्युनिटी के अंदर कोई क्रॉस ड्रेसर भी आ गए, फीमेल भी आ गई, हैं जी गे मैम। भी आ गए। दिन में एक ग्रुप होते, दिन में तो लड़के बन के फिरते हैं, और रात होते हैं मेकअप करके एंड जैसे लड़की बन के ऐसे निकलते हैं। उनको कैसे हम पहचानेंगे कि वो हमारे कम्युनिटी के हैं? सही बात है मैम। है ना। दिन में तुम कोई भी गलत करके, दिन में कोई भी तुम क्राइम करके फिर फिर रात को, मतलब रात को कोई भी क्राइम कर दोगे तुम, जनानियों की कपड़ा पहन के, फिर दिन में तुम मर्द बन जाओगे। गलत फायदा उठाया जा रहा है आप मतलब इस चीज का उठाए जा मैम। रहे, यही हाल हो रही है। मगर ये किसके ऊपर होता है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है? सिस्टम ब्लेम का पूरा होता है आपकी ना। कम्युनिटी पे आता है। सही बात है मैम। हाँ हाँ, सिस्टम का होता है ना। तो सिस्टम क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? सही बात सख्त है मैम। से सख्त कदम उठाना चाहिए सिस्टम को और सरकार को भी, जी मैम। ओके है सो ना। बिल्कुल सही बात है मैम। और तो मैम मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि आप इतने सारे हार्डशिप्स और स्ट्रगल से गुजरते हैं, तो मैम लाइफ में आपको कौन मोटिवेट करता है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, या वो कौन है जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को, और मतलब एक उसके साथ जीने की कोई उम्मीद है अभी भी, वो कौन है जो आपको वो मोटिवेट मेरे करता है? अंतरात्मा है, वो मेरे वाह। अंतरात्मा है। ताकि मैं पहले से, बचपन से मेरे अंतरात्मा के साथ ही जी हूँ, मैं हमेशा जीऊंगी उसी को लेके। क्योंकि हमारा कम्युनिटी के अंदर हमें कोई भी आगे मोटिव नहीं करते हैं, सब जी टांगे मैम। खींचने वाले हैं। हमारी कम्युनिटी भी कोई सीधे नहीं है, जो हमारे किन्नर कम्युनिटी में भी कोई सीधे नहीं है, सब टांगे खींचते हैं और बहुत कुछ ब्लेम दे रहे। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करी, मैंने सिस्टम को भी जाके मैंने हाथ जोड़ के ये करी, मगर सिस्टम ने सिर्फ वही किन्नरों के साथ भी मुझे भी एक किन्नर समझे, मगर उन्होंने कोई प्रोटेक्शन देने का नाम नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। अभी आगे आने वाले दिनों में अगर कोई भी उठ के कोई भी मुझे हमला कर सकता है तो सिस्टम बस आंख खोल के देखते रहेगा। मगर मैं तो लड़ते रहूंगी, मैं अपनी पहचान के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ मेरा अपना जीवन नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना जिंदगी नहीं है। आने वाले जनरेशन जो है, हमारे जैसे बच्चे अपने माँ बाप के पास महसूस हो, एक बेटा और बेटी को कैसा फ्यूचर शेप देते, एक भविष्य देते माँ बाप, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी दिया जाए। क्योंकि बच्चा पैदा होते नहीं पता लगता कि ये किन्नर है, कि ये बेटा है, कि ये बेटी है। जब सब जी बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे किन्नर हो, 14-15 साल के जब होएंगे, 13-14 साल में जब मैच्योर होएंगे, तभी जी पता मैम। लगता है कि उसके अट्रैक्ट किसकी तरफ है, उसकी एक्टिव कैसी है, उसकी आओ भाव कैसी है। क्या पता बेटा होके भी बेटे को ही पसंद करता हो, क्या पता बेटी होके बेटी को ही पसंद करते हो, है ना। जी और मैम। किन्नर भी तभी नहीं पता लगता कि किन्नर है क्या है। मतलब इंसान को है ना ऑर्गन्स में नहीं गिनना चाहिए, ऑर्गन से नहीं पहचानना चाहिए, उसकी सोच विचार के साथ पहचानना बिल्कुल। चाहिए। अगर किन्नर बच्चों को बचपन से अपने माँ बाप उनके अपने पास ही रखेंगे, जैसे इक्वल प्यार देंगे, तो बड़े होते होते वो अपने तुम्हारी समाज का रूल्स रेगुलेशंस को समझेगा, और कहते हैं कि प्रिंसिपल समझेगा, क्या सही है क्या गलत है समझेगा। तो वो नॉर्मली बच्चा लगेगा, कोई वो किन्नर नहीं लगेगा। वो सही किन्नर बात जब भी है। लगता है वो 14-15 साल बाद, जब माँ बाप ने जब एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी ने एक्सेप्ट करता, तो इस समाज में आ जाता है, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ताली बजाता है और किन्नर जैसे एक्टिंग करने लगता है, जी। तभी वो किन्नर लगता है। तो अगर इसके लिए अगर एक मेरा टेस्ट रिक्वेस्ट मिल है, जाएगी सही एज पे तो उनको ऐसे अलग थलग करने की कोई जरूरत ही नहीं बनेगी। जरूरत ही नहीं। क्या पता माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन सके। सही ये बात है। नहीं कि शादी करके 2 बच्चा पैदा करना ही कोई बड़ी बात नहीं होता, मैं यही कहती हूँ।
तो उस बच्चों का जिम्मेदारियां भी उठाने वाला बहुत बड़ा होता है। जी तो मैम, मैं ये बिल्कुल। कहती है, किन्नर होने के बावजूद भी अभी भी मैं 100 जन को पालने का हिम्मत रखती, मेहनत करके पालूंगी बोल के हिम्मत रखती हूँ। हाँ, ताकि जी मैम। ममता बहुत इंपॉर्टेंट होते, कहते हैं ना कंपैशन, कंपैशन होता है, अफेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी, है ना। तो हर जी मैम, इंसान को एम्बिशंस होना जरूरी है, महत्वाकांक्षी होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम। आपकी इन बातों से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी जरूरत है हमारे सिस्टम में चेंज की। इस हाँ जी, हाँ जनरेशन जी। को काफी जनरेशन पे काफी जिम्मेदारियां हैं मैम, मैं कहूंगी, क्योंकि हम ही है जो आगे ऐसी बातों को स्प्रेड करके अवेयरनेस फैला के लोगों को थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं कि इस कम्युनिटी को भी उसी नजरिए से देखा जाए जैसे बाकी लोगों को देखते हैं। सही बात है, मतलब ये ऐसे देखना चाहिए। और कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई प्राइवेट कंपनीज होता है, और प्राइवेट कोई भी जो फैक्ट्रियां होते हैं वहां भी जॉब देना चाहिए बुला के, उसकी जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग के जरिए उसको जॉब देना चाहिए, और उसके साथ साथ तो सब सुविधा मिलना चाहिए। और सरकार जो बातेगी, जैसे हर कम्युनिटी के लिए जैसे शेल्टर है, और पढ़ने के लिए जैसे बहुत कुछ सुविधा है, अम्यूनिटीज है, कन्वीनियंस है, वही कन्वीनियंस, अम्यूनिटीज और शेल्टर, ये रोटी कपड़ा मकान की जो अम्यूनिटीज है, वो सब अम्यूनिटीज हमारे बिल्कुल। ट्रांसजेंडर समाज को देना चाहिए, और बिना जी मैम। भेदभाव किए, बिना सोचे, जी और मैम, जल्दी से जल्दी देना चाहिए कि जो वो नहीं कि देर नहीं करना चाहिए। वरना तो अगर सही इतनी बात। हिम्मत है तो उनके अंदर बिना इलेक्शन के हमें एक पार्लियामेंट में मुझे एक सीट देना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप ही को मौका दे दे कुछ करने का। अभी बात सही है, मौका बस दे, सपोर्ट हम करके दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। करके दिखाएंगे मैम, पूरा भरोसा है हमें। यही और बात मैम, है, और ये चैलेंजेस है। वरना तो मैं शरीर से मैं किन्नर हूँ, दिल और दिमाग मेरा किन्नर नहीं है। अगर वो लोग अगर मौका नहीं देंगे, अगर जल्दी से जल्दी काम नहीं करेंगे, हमें मौका नहीं देंगे, तो वो दिल और दिमाग से किन्नर है, मैं तो यही कहूंगी। जी हाँ, मैम, बिल्कुल। आपके हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को हम अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करके आपके इन वर्ड्स को सारी पब्लिक तक हम पहुंचाएं, मैक्सिमम लोग सुने आपकी आवाज और आपकी थॉट की आपके दिल और दिमाग में क्या चलता है। और मैम, जाने से पहले हम आपको एक सर्टिफिकेट दे के फेलिसिटेट करना चाहेंगे। तो निकिता, प्लीज स्क्रीन शेयर करके मैम को वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर दो। निकिता। हाँ, ओके। सो मैम, ये हमारे साइड से आपके लिए एक मैम थोड़ा जूम करके देख लीजिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन से आई हुई हैं, एक बार स्क्रीन को जूम कर लीजिए थोड़ा सा। तो मैम, ये हाँ जी, हमारे हाँ जी। साइड से आपके लिए एक छोटा सा हम आपके लिए एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना चाहेंगे, एक अप्रिसिएशन के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए और हमें ये आपका कीमती समय देने के लिए मैम। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। गॉड थैंक यू ब्लेस यू। मैम, ओके, थैंक बाय। यू सो मच मैम। यू बाय। वेलकम, बाय।